Hi friends, let's begin new chapter number 10, circles. What is circle? It is a very basic thing which you know from the very lower classes. Various terms of the circle is also clear to you, like what is radius, what is diameter, what is chord. You all have learned this in the lower classes. Let's begin with some example of circle, like a will is a circle, clock is a circle, ring, circular ring, key, chain, these all are the examples of circle. Coin, bangle are also the example of circle. Now let's begin with the geometrical definition of a circle. According to the geometric definition, a circle is a locus. What do you mean by locus? Locus means path of a point which move in a plane in such a way that its distance from a fixed point remains constant. Okay, what is a circle? A circle is a locus of a point. It is a path of a point which move in a plane in such a way that its distance from the fixed point, that fixed point is the center of the circle. वो center से उसका जो fixed point है, ये यहाँ से वो हमेशा constant होता है. That is center से वो fixed point है वो radius होगा. Radius is constant. All right. The fixed point is called the center and the constant distance is called the radius of the circle. All right, this is the definition of a circle. So what is a radius? Let's begin with a radius. अब radius क्या होता है? तो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं. जैसे अगर हम यहाँ एक सर्कल बना रहे हैं एंड सपोज दिस इज अ सेंटर, सो ये फिक्स पॉइंट है. यहाँ से ये जो पॉइंट यहाँ तक आएगा, सपोज ये O और ये P. सो OP इज व्हाट? OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. हाउ मेनी रेडियस वी कैन ड्रॉ इन अ सर्कल? हम एक सर्कल में कितना रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं? इनफिनाइट. ओके, एज मैनी एज वी वॉन्ट, कितनी भी हम रेडियस इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं. ऑल राइट, सो दिस इज अ रेडियस. नाउ कॉर्ड. व्हाट इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल? दिस इज अ सेंटर. और कॉर्ड क्या होता है? दिस लाइन, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज नोन एज द कॉर्ड. व्हाट इज अ कॉर्ड? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट joining any two point on the circumference of the circle. Now what is circumference of a circle? Circumference मतलब होता है ये जो पूरी पैरामीटर है सर्कल का, ये जो लेंथ है, this is known as the circumference of the circle. The length of complete circle. Okay, जो सर्कल का जो पूरा complete length होता है that is known as the circumference. और इस लेंथ पर, इस सर्कमफ्रेंस के किसी भी दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, जैसे अगर ये B और C कर दिया तो ये कॉर्ड बन जाएगा. ठीक है. Now then what is the diameter of the circle? Okay, what is diameter of the circle? This is a center और ये suppose दो point है, this is P and this is Q. If I join PQ, I'll get a diameter. So according to it, what is the definition of a diameter? Diameter की आप definition क्या बोलोगे? So diameter is a line segment which is passing through the center of the circle. Okay, and joining any two point on the circumference of the circle is called the diameter. Can we say it is a chord only? It is a chord which passes through the center of the circle. क्योंकि chord जो है, chord में और इसके definition में सिर्फ center का difference है. chord जो है वो center से pass नहीं होता और जो diameter है वो center से pass होता है. तो we can say कि जो longest chord होती है circle की, the longest chord of the circle is diameter itself. Okay, chord can be the diameter, but can we say कि जो कॉर्ड है वो डायमीटर जो है वो कॉर्ड हो सकती है, सॉरी, बट कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकती है. ओके, नाउ एंड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होगी आपके सर्कल की, जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी, वो क्या कहलाती है? डायमीटर. नाउ डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस. जो डायमीटर होती है वो रेडियस का डबल होता है क्योंकि वो सेंटर से ही पास होता है. राइट, अभी ये जैसे O और X है तो OX और को अगर मैंने और एक्सटेंड किया इसी को और सर्कमफ्रेंस पे यहाँ पे y लिखा तो y और OX क्या बन जाएगा? डायमीटर. सो डायमीटर जो होता है, क्या रिलेशन होता है इसमें? डायमीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस. इफ रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डायमीटर विल बी 10 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? नाउ हाउ मेनी डायमीटर्स वी कैन ड्रॉ इन अ सर्कल? एक सर्कल में हम कितने डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं? लाइक रेडियस वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स. हम कितनी भी डायमीटर सर्कल के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं. ऑल राइट, नाउ व्हाट इज आर्क? अभी एक पॉइंट है, आर्क क्या होता है? सो सपोज ये दो पॉइंट्स लिए मैंने सर्कल के, ये लेंथ पर सपोज मैंने यहाँ पे दो पॉइंट लिए, ये P और ये Q. तो ये सर्कल का ये जो पीस बन रहा है ये वाला, दिस इज नोन एज द आर्क ऑफ द सर्कल. ओके, सो इन दैट सेंस ये भी तो आर्क होगा ना, तो yes, it is also arc. So this arc is known as minor arc. इसे हम minor arc बोलेंगे.
एंड दिस इज बिग, ये बड़ा है, तो दिस इज अ मेजर आर्क। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस हिसाब से, अगर यहाँ मैं P1 लेती हूँ, यहाँ P2 लेती हूँ और यहाँ P3 लेती हूँ, सो P1 इज ऑल्सो आर्क, P1 P2 इज ऑल्सो आर्क, P2 P3 इज ऑल्सो आर्क, P3 P3 एंड Q इज ऑल्सो एन आर्क। ओके, सपोज इस आर्क का डायमीटर एंड पॉइंट है। ठीक है, सपोज ये डायमीटर है, डायमीटर जो रहेगा वो सर्कल को सेमी सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो ये जो आर्क होंगे वो सेमी सर्कल बन जाएंगे। ठीक है, दिस इज अ सेमी सर्कल, राइट, हाफ हाफ सर्कल हो गया ना वो, तो वो सेमी सर्कल हो जाएगा। ओके, नाउ जो सर्कल होता है उसके अंदर का जो रीजन होता है उसे इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहते हैं। अब सर्कल के इस साइड में, अंदर के साइड में जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे, P Q R S वॉट एवर, दे विल बी सेड टू बी इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एंड ये वाला जो पोर्शन होगा बाहर का, दैट इज नोन एज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। दिस पोर्शन इज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सो एक्चुअली प्लेन जो होता है वो सर्कल जो है वो उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एंड दिस इज द ऑन द सरकमफ्रेंस, मतलब जो सर्कल के ऊपर का जो रीजन है, जो सर्कल खुद एक रीजन है। सो इन दिस वे जो सर्कल डिवाइड द प्लेन into how many parts? Into 3 parts, interior, exterior and this part. Okay, सर्कल जहाँ बनता है, जो सर्कमफ्रेंस होता है, दैट पार्ट। ऑलराइट, आई होप ये चीज़ें जो थी वो आपको लोअर क्लासेस में भी थी। डायमीटर आपने पढ़ा है, कॉर्ड और डायमीटर का रिलेशन आपने देखा है, रेडियस आपने पढ़ा है, आर्क भी आपने पढ़ा है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द सेक्टर। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको जो न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, वो है आपका सेक्टर। नाउ व्हाट इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सेक्टर ऑफ द सर्कल अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव द मीनिंग ऑफ सेक्टर। सेक्टर होता क्या है? सो सपोज दिस इज अ सर्कल, ये आपका सर्कल है और ये आपका सेंटर है। तो ये जो रीजन मैं बना रही हूँ, सपोज ये O और ये P और ये B, OP एंड OB आर द रेडियस, करेक्ट, ये दोनों रेडियस है। और दिस इज अ आर्क, ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है, दिस इज एन आर्क। सो ये जो रीजन बन रहा है, द शेडेड रीजन जिसे मैं शेड कर रही हूँ, दिस इज नोन एज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। नाउ सो डेफिनेशन इज, though it is a region between the 2 radii and the corresponding arc. What is a sector? Sector is a region between the 2 radii, 2 रेडियस और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो रीजन होता है, दैट इज नोन एज द सेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, ये 2 रेडियस है और फिर ये जो PB है ये मेजर आर्क है। तो ये जो रीजन बन रहा है आपका, ये जो व्हाइट वाला जो रीजन है, इट इज ऑल्सो अ सेक्टर। तो यस, इट इज ऑल्सो अ सेक्टर। सो इन दैट वे वी हैव अ 2 सेक्टर। दिस वन इज अ माइनर सेक्टर, क्योंकि ये छोटा है, ये स्मॉल है, सो दिस इज माइनर सेक्टर। और ये जो रीजन होगा आपका व्हाइट वाला, दिस इज नोन एज द मेजर सेक्टर। ऑलराइट, सो आई होप आपको सेक्टर का जो क्लियर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सी द सेगमेंट। व्हाट इज सेगमेंट? अब आपका सेगमेंट होता क्या है? सो सेगमेंट इज अ रीजन। सपोज दिस इज अ सर्कल, ये आपका सर्कल है और यहाँ हमने एक कॉर्ड बनाई है AB। लेट AB इज अ कॉर्ड, दिस इज अ सेंटर O। सो जो मैं शेड कर रही हूँ ना, ये वाला रीजन, दिस इज नोन एज द सेगमेंट। नाउ सी द डेफिनेशन। सेगमेंट इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, तो फिर ये कॉर्ड और ये भी उसका AB जो है, ये भी आर्क है, मेजर आर्क है, तो ये भी सेगमेंट होना चाहिए, दिस वाइट पोर्शन। तो यस, इट इज ऑल्सो अ सेगमेंट। अगेन वी हैव अ 2 सेगमेंट, दिस इज माइनर सेगमेंट, ये आपका माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और दिस रीजन इज नोन एज मेजर सेगमेंट। ऑलराइट, understood the segment? What is segment? It is a region, it is a part of the circle between the chord and its corresponding arc. Okay, and what is a sector? It is a region, it is a part between the 2 radii and its corresponding arc. So we have minor sector, major segment and minor segment. Okay, now what is the definition? Let's see once again. The portion of the circular region enclosed by 2 radii and the corresponding arc is called the sector of the circle. As I explained you, this is a minor sector and this is a major sector. And what is a minor sector? A sector of a circle is called the minor sector if the minor arc of the circle is a part of its boundary. जब minor arc उसकी boundary पे होगा तो वो minor sector होगा. Okay, as in the figure, ये देखो जैसे ये फिगर है AOBP, this is a minor sector. And what is a major sector?
A sector of a circle is called the major sector of a major arc of a circle is a part of its boundary. जब मेजर उसका आर्क होगा बाउंड्री पे तो वो मेजर सेक्टर कहलाएगा. So I hope आपको the meaning of my major sector and minor sector is clear to you, as well as segment. Now you know what is a segment. What is a definition of a segment? So segment का definition तो मैंने आपको बताया. It is a region between the chord and the corresponding arc. Let's see the meaning or a definition of minor segment. If a boundary of a segment is a minor arc, अगर जो boundary है अगर वो minor arc पे boundary है तो then the corresponding segment will be called the minor segment. Okay, and like अभी ये वाले फिगर में ये जो रीजन है ये रीजन आपका क्या होगा? माइनर सेगमेंट होगा. नाउ व्हाट इज अ मेजर सेगमेंट? अभी मेजर सेगमेंट क्या है? तो मेजर सेगमेंट होता है आपका अ सेगमेंट करस्पॉन्डिंग अ मेजर आर्क. जब सेगमेंट में करस्पॉन्डिंग आर्क रहेगा आपका ऑफ अ सर्कल इज नोन एज द मेजर सेगमेंट. सो इज द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू? माइनर एंड major segment. How to find the area is also there but not in 9th standard. अब इसका area of minor sector, area of major sector, area of minor segment, major segment, everything is there but not in 9th standard. 9th standard में basically you will deal with chords, its various theorems and all. Area and all you will learn in higher classes, that is in 10th standard.